अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू सुनैरा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। जी, अल्लाह का शुक्र है। और आपने कल प्रैक्टिस की थी? नहीं, अभी कर रही थी मैम। ओके। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन सो फार? नहीं, वो कल वाला जो वर्ड था उसका आपने बताना था मुझे। जी, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बिकॉज इट हैज सम काइंड ऑफ एडवांस लेवल इंस्ट्रक्शंस, सो लेटर ऑन हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हम थोड़ा 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 करके आगे जाएंगे तो वी कैन इजीली डाइजेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स। ऑलराइट। ठीक। ओके। सो ये इसमें एक, एक बात पूछनी थी। ये जो हैं वर्ड्स हैं, इनमें एक वर्ड था इन्ननी। हम्म। तो ये ई का तो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा कि मतलब अटैच प्रोनाउन डिटेच ये दिस प्रोनाउन। वन, जी इस वर्ड की बात कर रही है, एक सेकेंड। जी जी। If you remember, we have discussed yesterday about this word. In attached pronouns, we have seen that there were two attached pronouns for in ana. Do you remember that? One was chotiya and one was ni. जी 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 जी, हाँ हाँ, याद आ गया। Let's see. Uh, Here it is. जी जी, याद आ गया, अना के साथ है। Yes. So these हम्म kind of charts you have to go through regularly. So automatically you can get the clarity. Okay. हम्म। तो ये सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? ये it's see what's its independent pronoun. For I it is using. Okay. जी, इन्ननी जब हम यूज करेंगे तो ये भी सिंगुलर में ही आएगा। प्लूरल होने का रीजन नहीं है ना। अब देखिए अना के लिए यूज हो रहा है ना। अना फॉर जी आई। द जी जी। independent pronoun is ana and हम्म। the attached pronoun is chotiya and ni. So for what reason we can think that it would be used for plural? There is no reason, right? ठीक है। और And ये for मेस्कुलिन nanu, होगा या फेमिनिन होगा? जी, ये वर्ड मेस्कुलिन होगा फेमिनिन होगा? uh, as you know that Anna and Nanu can't figure out that what is the gender, because as you know, if I'm talking, so I am saying Anna. If the person who would be male or masculine, so he would also say Anna. So Anna is not figuring out that what is the gender. So there is nothing to do with this, like while we are discussing about I and we. All right. ओके। इसमें जेंडर तो मेंशन ही नहीं कर सकते ना, कि मैं जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आए, तो आए तो जी। मेल हो या फीमेल हो, वी वुड व्हेन वी वुड हैव टू से आई, इट मींस आई। there is nothing about ओके। understanding that what is the gender, so we should have to focus on that कि अना जब हम कहते हैं आई कहते हैं तो वो अनलेस के हम कोई वर्ब यूज ना करें, अनलेस वी विल से समथिंग in terms of ism or fail, so we can't figure out our gender. Okay. ठीक। So we should have to know independent noun ana has the two attached pronouns, and what are they? Chotiya and ni. ठीक। Okay. So, have you done rest of the words or not? नहीं, सारे नहीं किए मैंने। So, can we do right now, or you can practice later on at home? Otherwise, we can move on and we can go through more things. ये Okay. कुछ मुझे एक तो बस करवा दें, ज्यादा नहीं। एक Okay. है मिन बिही। मुझे मेस्कुलिन और फेमिनिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। कौन सा वर्ड कह रही है? ये 25 28, मिनहू एंड बिही। Minhu and Bihi. बिही। Okay.
Yes, minhu. What is the type? जी नस्ब है और सिंगुलर है, और मुझे आगे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन इसकी नहीं समझ लगी। Masculine and feminine, you can't figure out. जी What is it? Is it attached pronoun or independent? अटैच। Attach. So who use for what? Which independent pronoun? Let's see. ही। Exactly. See. अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ना, एक सेकंड. We need to see the chart. When we go through the chart regularly, like आपको याद है आपने मुस्लिमतुन वाला चार्ट जो है वो हमें शुरू में we got confused कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है. But now, Alhamdulillah, I'm really hoping that you know each and everything about Muslim chart, right? जी Likewise, you have to understand that this white row is all about the independent pronouns, and this gray area is all about the attached pronouns. And here we have two uh, attached pronouns for हुआ, who और he. So अभी ठीक। आपने किसका पूछा था? min who. Here it is. Got it, Sumaira? जी जी। Okay. So मीन हूँ जी। yes, मीन हूँ मैंने कहा हो गया, बी ही कभी मुझे बता। masculine हो गया, and then प्रॉपर। type. प्रॉपर नहीं है ये। जी ये मीन हूँ का पूछ रही है या बी ही का? नहीं, अभी हमने मिनहू की तीन ही वो प्रॉपर्टीज की है ना. अच्छा स्टेटस, अच्छा। नंबर एंड जेंडर. नाउ जी इट्स टाइप. जी प्रॉपर। जी एग्जैक्टली. ओके. जी क्योंकि एक किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ मेंशन किया जा रहा है ना, मिनहू, जी जी उससे. ठीक है, फ्रॉम जी। हिम. तो फ्रॉम हिम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात की जा रही है या रैंडमली? स्पेसिफिक पर्सन। एग्जैक्टली, सो दैट वुड बी प्रॉपर नाउन. ओके, एंड नाउ बी ही. यस. इसमें भी नस्ब है। अब ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ही ये भी फिर वही वाला इसी का ही होगा, ही वाला ही होगा। देखिए हु और यहाँ पे ही भी ही है जैसे। ना, तो नसब नहीं बनता, जर बनता है. आई टोल्ड यू अर्लियर while we were talking about the charts that right now हम इसको यही कहेंगे कि जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं, एक सेकेंड, they are always attached pronouns are sorry, independent pronouns are always rafa, and attached pronouns are always nasab and jar. I जी told you yesterday, if you remember, that later on we can figure out that what would be the nasab and what would be the jar, right? जी ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? बिही है, तो इट वुड बी जर. जी ऑल राइट. जी। ओके, स्टेटस हो गया जर. देन सिंगुलर. सिंग जी। जेंडर. ही होगा मेल। जी मेल होगा। जी मैस्कुलिन. अभी हमने पढ़ा ना, हुआ के साथ दो अटैच प्रोनाउंस होते हैं, हु और ही. हम्म। एंड प्रॉपर नाउन. एंड प्लूरल, हाँ जी प्रॉपर। और ये मतलब यहाँ पे हा के नीचे खड़ी जेर है भी। क्या कह रही है? तो यहाँ पे ना बिही जो है, हम्म. देखे ना, हा के नीचे जो दी गई है वो सिंपल जेर तो नहीं है, खड़ी जेर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल है जेर। मैं समझ नहीं ठीक पा है। रही हूँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे? नहीं नहीं, बस मुझे समझ आ गया। नहीं, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन गेट द क्लैरिटी. मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ यहाँ पे ना, जिस तरह से ना नीचे जो जर जो दिया गया है ये सिंपल जो है जेर जो जी है वो ऐसे दी दिया गई हुआ है, है. वैसे
हाँ जी, समटाइम्स ये होता है, खड़ी जो होती है ना, खड़ी जेर होती है, वो ये वाली। होती है। हाँ जी, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? ये वाला जो है ना, ये मुझे निकाल के दिखाइएगा, ढूंढ के मुझे बता अच्छा, दीजिएगा। आई विल सी के कॉन्टेक्स्ट क्या है, देन आई विल लेट यू नो, राइट? ठीक। ओके, सो कैन वी डू मोर और इट्स इनफ? नहीं, बस काफी है, आगे से। बाकी आप कर लेंगी इजीली। जी जी। जी जी, आगे। ठीक है, हम एक और कर लेते हैं। अलैकुम। अलैकुम। अलैकुम, ये हमारे पास नसब है, और नस्ब ये और हमारे जर। पास नसब और जर, और ये हमारे पास प्लूरल है, ओके। और ये हमारे पास मैस्कुलिन है और प्रॉपर है। ठीक है। अच्छा, ये जो जब कुम और हुम होता है ना हमारे पास, so हम्म। we should have to see the whole sentence and context, because as you remember, I told you earlier that kum used for male female both sometimes. Like for instance, when we talk about males they, so we use kum. When we talk about females they, so we use hunna, right? ऐसा ही है ना? जी But जी when जी we talk about both male and female जी together, then always we जी। use kum. ठीक। ठीक है? जी Okay, let's move on then. Uh, can we do a quick review, whatever we have done so far? तो Uh, कल का था। Previously, we have started from the word that Arabic has word, a kalima, and it has three words, ism, fail, and jar. Sorry, ism, fail, and harf. And then, एक second. Okay. आप बोलती जाएंगी, मैं लिखती जाऊंगी। यस। जी, सबसे पहले हमने कलमा के बारे में पढ़ा था, उसमें इसम, फेल और हर्फ होता है। फर्स्टली और वी आई कैन से दैट, एक second. We have the word, right? How many जी words we have? Words, like there are three kind of words, right? जी। Okay. Yes. इसम, फेल और हर्फ। Hmm. इसम, सबसे पहले हम इसम कर रहे हैं। इसम की चार प्रॉपर्टीज हैं। Perfect. चार प्रॉपर्टीज: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। अब सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटस के बारे में बताना है। स्टेटस में हमारे पास रफा, नसब, जर। सबसे पहले हमारे पास आता है मुस्लिम चार्ट। ठीक है? जी जी। ओके। स्टेटस मुस्लिम में चार्ट हमारे आ पास जाता है हमारे पास, लाइट वर्सेस, हाँ, स्टेटस वही रफा हैवी। नस्ब जर ना। जी जी। उस हैवी मुस्लिम चार्ट वर्सेस के लाइट। अंदर ही रफा नस्ब जर को आप काउंट कर लें, ठीक है? जी। देन हैवी वर्सेस लाइट। एग्जैक्टली है, लाइट वर्सेस हैवी। देन फ्लेक्सिबिलिटी। परफेक्ट। इन नंबर। उसके बाद नंबर।
नंबर में हमारे पास स्टेटस, ब्रोकन नंबर में प्लूरल, हमारे पास ब्रोकन प्लूरल और नॉन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है। जेंडर, जेंडर में हमारे पास आएगा मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। and we have how many kinds? 6 reasons कुछ रीजन है फेमिनिन। to make what? फेमिनिन। Exactly, to make a word feminine. Okay, then टाइप, कॉमन एंड प्रॉपर। common and proper, but we have 7 reasons to make a word proper. Okay, जी तो वो रीजंस हमें याद है, जेंडर की हमें 6 reasons याद है, जी जी। ठीक है। तो ये इन चीजों को गो थ्रू करती रहे ताकि ये हमें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए, और जब भी हमें करना हो तो हम क्या करें, फौरन से जो है वो चीजों को रिमाइंड करें। ओके, देन प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या है? प्रॉपर, इंडिपेंडेंट और अटैच प्रोनाउन। रफा, नसब, एंड जर, और एंड ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट। एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है। सेकेंड, यस, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन एंड अटैच्ड प्रोनाउन। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम आ जाते हैं फ्रेगमेंट्स पे। डू यू नो अबाउट फ्रेगमेंट्स? नहीं। Do you know about phrases? In the beginning, we have learned something about phrases that when we can figure out the sentence, it is not sentence, it's a phrase. You जी remember? जी। So, fragment is that kind of process, that word plus word, you can say. When there are two words together, so that would be a fragment. But we have to know that how can we figure out which kind of fragments, because there are multiple kind of fragments. The first one would be mudaf alayh. Have you heard about it? जी। Okay, can you let me know what do you know about it? नहीं, मुझे खास पता नहीं है इसका। ठीक है, आपने सुना है, क्या सुना है इसके बारे में? बस ये वर्ड सुना हुआ है, बाकी नहीं पता। शायद मेरे ही मुंह से सुना हो आपने। नहीं नहीं, पहले भी मैंने सुना हुआ था, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे उसका मीनिंग नहीं पता होता क्या। Okay, firstly, we should have to know that fragments have multiple kinds. लाइक फ्रेज कोई भी किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने आपको याद होगा, मुब्तदा, खबर, सफ़ा, मौसूफ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। जी सो जी। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मुदाफ, मुदाफ अलैह, ठीक है। सो कितनी है इसमें टाइप्स, फ्रेगमेंट्स की कितनी टाइप्स? आई गेस 6, 5 to 6 है। ठीक। ओके, सो नाउ let's see that how can we know that what is mudaf, what would be the reason to know that it is a mudaf. So firstly, we have to know if there would be a phrase and first word would be the mudaf, and what would be the condition that it would be light, okay, and ठीक है। no al.
All right. ठीक। Okay. Then we have mudaf ilayh. It would be a second word. And what would be the condition? That it would be jar. Okay. ठीक। All right. इतनी इतनी बात क्लियर हो गई? जी। जैसे फॉर इंस्टेंस और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये जर है, यानी मैं अगर कहती हूँ रसूलुल्लाह, ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि पोजेशन क्या होता है। डू यू रिमेम्बर दैट? नहीं। नहीं याद? हमने पढ़ा था नहीं। सुनिए, एक सेकेंड। वो स्टोरी याद है आपको? एक सेकेंड। हाँ जी, थोड़ी। उससे पहले हमने एक ड्रिल की थी, आई थिंक ये वो ड्रिल इसमें है। वी हैव डन अ ड्रिल, और उस ड्रिल में हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें की थी। इफ यू रिमेम्बर, लेट्स चेक इट आउट। आई थिंक ये वाली है। और यहाँ जब हमने ये किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था? आफ्टर ऑफ, व्हेन वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट इज हर्फ, सो आफ्टर ऑफ हम्म। समथिंग व्हिच हैज अ पोजेशन, लाइक ये मेरी चीज है, इट्स माइन। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कहते हैं रसूलुल्लाह, ठीक है, तो ये क्या वर्ड बन गया? इसका क्या मतलब है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जी। तो हम क्या कहते हैं? आफ्टर ऑफ ऑलवेज क्या होता है? हर्फ होता है ना, जी। हर्फ जर होता है, ठीक है। तो ये पोजेशन वुड बी ऑलवेज ऑफ, पोजीशन क्या होगी? ऑलवेज। आफ्टर ऑफ, ये हमने पढ़ा था ना। जी जी। इफ वी वांट टू नो अबाउट द हर्फ, that then we have to check the word that if there would be you can say baiti, my house, जी। the house of mine। तो इसमें छोटिया क्या आ रहा है? जर में आ रहा है ना। जी। अब ये जो मुदाफ इलैह है ना, ये मैंने आपको बताया, इट वुड बी ऑलवेज ऑन जर। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, इट मींस ये क्या होगा? जी सुमैरा? मुदाफ। मुदाफ आप मुदाफिल। मुदाफ इलैह होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लाइकवाइज अगर मैं कहती हूँ सबीलुल्लाह ही, अब ये इसमें आप कंडीशंस देखें, ये वाली पूरी हो रही है। फर्स्टली हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे, मुदाफ।
ये वाला, ये कंडीशंस देखें, चेक करें। फर्स्ट वर्ड जी क्या है हमारे पास? सबील। सभी लाइट है, इसमें अल नहीं है, और सेकंड वर्ड में जर आ रहा है हमारा। एग्जैक्टली। सभी If there would be any single condition, you can see that it's not fulfilling, so it means there it is not mudaf mudaf alayh. Okay, ठीक। इतना ये समझ? जी ये समझ आ गया। ये पोजीशन के बारे में जो आपने बात किया आफ्टर ऑफ, तो ये जो हमने बई ती की आपने एग्जांपल दी, तो बई ती में यहाँ पे कहाँ पे ऑफ वाला तो कोई सीन नहीं आ The house of mine. रहा। अच्छा ठीक है। This is the possession. Path of Allah. ठीक है। एक से। Okay, so path of Allah में after of would be क्या है वो? जर। Word Allah is jar here. Okay, ठीक है। it's very easy basically मुदाफ मुदाफ इलैह। Likewise हमने ये देखना है कि अटैच प्रोनाउंस व्हेन वी हैव, अभी हमने क्या डिस्कस, मैं आपको क्या बता रही थी कि अटैच प्रोनाउंस वी वी नो दैट अटैच प्रोनाउंस आर ऑलवेज नसब और जर, हम्म। एंड लेटर ऑन वी कैन फिगर आउट दैट व्हाट वुड बी द नसब एंड व्हाट वुड बी द जर। जी रिमेंबर जी। मैंने ये कहा था, जर आपको की याद है? अपने क्या कह रही है? क्या कहा था आपने? मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास अटैच प्रोनाउन होते हैं तो ऑलवेज दे विल बी नसब और जर, and I also told you जी that later on we can figure out that what would be the exactly nasab and what would be the exactly jar. Okay, क्या बताया था इसमें, मुझे नहीं याद। मैंने यही तो बताया था ना आपको कि हमारे अभी जो हमने अटैच और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़े, आपको याद है ना? जी जी ये तो याद है। हाँ, तो नहीं नहीं, उसमें नसब और डिपेंडेंट जर का जो प्रोनाउंस डिफरेंस बताया, क्या कह रही है? नसब और जर का जो डिफरेंस बता रही है ना, उसका वो कर रही थी। जी वही मैं आपको बताने लगी हूँ। जब हमारे पास होता है किताबुहु, क्या ये मुदाफ मुदाफिल है? जी कैसे? उसकी किताब, एग्जैक्टली हिज बुक, हिज बुक। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से बुक ऑफ हिम। अगर हमने हम्म। अपनी आसानी के लिए सोचना है कि आफ्टर ऑफ कैसे आएगा, जी जी। तो ये क्या है? किताब हु है, तो ये हु के बावजूद हम इसको जर कंसीडर करेंगे। अच्छा यानी हम ये वर्ड कहीं भी देखेंगे तो वी शुड नो दैट इट इज मुदाफ मुदाफ इलैह, बिकॉज इफ अटैच प्रोनाउंस would be used anywhere, we should have to know that either it would be nasab or either it would be jar. अगर हम क्या करेंगे, अटैच प्रोनाउन। when we know that मुदाफ मुदाफ अलैह की कंडीशंस पे कोई भी वर्ड पूरा उतर रहा है और उसमें अटैच प्रोनाउन एडेड है, हम्म। इट मींस ऑलवेज इट विल बिकम जर। हम इसको कंसीडर क्या करेंगे? ठीक है। क्या क्या कंसीडर करेंगे? जर। जर। ठीक है, जैसे जी अगर मैं कहती हूँ रब्बुहुम, ठीक। इज इट मुदाफ मुदाफ अलैह? रब्बू हम, रब्बू हम, उसका रब। पहले इसको देख लें मुदाफ को। इज इट लाइट एंड विदाउट अल? जी पहली कंडीशन पूरी हो गई। Second जी। is attached pronoun. So automatically it would be considered as mudaf mudafil hai, and जी is jar here. ठीक है। Understood? जी जी। Because अभी हम एक exercise करेंगे for more clarity. So we should have to know that and रब्बुहुम के का मतलब बताएं मुझे क्या होगा?
उसका रब। हाँ, एग्जैक्टली तो हम कैसे लिखेंगे? उनका रब, लॉर्ड ऑफ देयर्स और देयर लॉर्ड। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इजीली क्लैरिटी हो जाए कि आफ्टर ऑल वी आर कंसीडरिंग इट एज पोजेशन, हमारा रब, ठीक यानी आई एम ओनिंग दैट हमारा रब, सो इट इज पोजेशन। ओके, ठीक। ऑल राइट। ये एक्सरसाइज आप जरूर आज कर लीजिएगा सुमेरा, प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, दूसरा इंशाल्लाह। ये कि यू हैव टू, you guys also have to go through the document which I have shared in the group. Easily you can read it. When you read it, so easily you can get to know all of the things. Everything is mentioned here, okay? ठीक। इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह को। जैसे इसमें नोट्स मेकिंग हुई हुई है ना, कैन यू सी? जी जी जी। Whatever we have discussed right now, the mudaf word before of should be light, no alif and lam. Then mudaf ilayh word after of should be in jar. No long distance relationship, यानी ये दो वर्ड्स कभी भी दूर दूर नहीं होते, करीब होते हैं। The last property of the mudaf type is dictated by the mudaf ilayh. All always जो है वो मुदाफ जो है वो मुदाफ इलैह के अंडर होता है और वो उसको डिक्टेट कर रहा होता है। बोथ द मुदाफ एंड मुदाफ इलैह शुड बी इस्म, ठीक है? ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशंस वी शुड हैव टू रिमेम्बर। फिर इसके अंदर ऑफ ट्रांसलेशन आ जाती है, जिसमें जैसे इमाम ऑफ द मस्जिद, देन प्रोनाउंस अटैच टू एन इसम, लाइक अभी हमने किताबु और रब्बुहुम वाले वर्ड्स जो डिस्कस किए हैं। एंड देन स्पेशल मुदाफ्स अंडर द अर्थ, ताहतल अर्दी, ये स्पेशल मुदाफ्स वी विल डिस्कस अबाउट देम लेटर ऑन। राइट नाउ हम अभी ये जो हमने बिगिनिंग ये जो टू कंडीशंस पढ़ी हैं इनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, here we should have to figure out that which word is mudaf ilayh and which is not. So can you Sumera tell me which word is this? कौन से वाला? Number one, अरब और yadkhulal jannata। यद खुलल। ये अच्छा मुदाफ मेरा मुदाफ एक काम इलैह। करते हैं, इसको ये रैप अप करके दूसरा सेशन में जनरेट करती हूँ लिंक, क्योंकि ये आ रहा है ठीक 2 मिनट में, ये वो हो जाएगा, ठीक है? ठीक।